Dina. We are going to have a lecture on abnormal uterine bleeding today. So, before starting, I am hoping that all of you are in best of your health, inshallah, you and your families. ये माइक मुंह के पास नहीं है आज। आप चेक करें, अब ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली Assalamu alaikum everybody, hoping that you can hear me properly and hoping that all of you and your families are best of in your health and having Ramzan, enjoying Ramzan with full zeal, having lots of prayers, studying a lot and enjoying good health inshallah. So we are going to study abnormal uterine bleeding today. So what are our objectives? First of all, we will discuss introduction, then normal physiology of menstrual cycle, different definitions we will discuss, then we will discuss different menstrual cycle abnormalities, including HMB, that is heavy menstrual bleeding, dysfunctional uterine bleeding, dysmenorrhea, and amenorrhea. So, introduction. What is menarche? As you all know, menarche is having periods for the first time in life. What is the median age of having periods? It is 11 to 12.7 years. During first 1 to 2 years of onset of menses, in 55 to 82% of cases, patients, girls mostly have an ovulatory cycles. What is the duration of normal menstrual cycle? Normally it's between 21 days to 35 days with the average of or mean of 28 days. So periods last for 3 to 7 days and blood lost in every menstrual cycle is 30 to 40 ml. Going on to the physiology of menstrual cycle. What is the physiology of menstrual cycle? Menstrual cycle is a cyclical physiological phenomena starting at the age of menarche till the establishment of menopause. Menopause is when you have more than 6 months passed from the last menstrual period. Menstrual cycle is regulated by hypothalamo, pituitary and ovarian hormones which are secreted in pulsatile and cyclical pattern. This cycle is also influenced by endometrial response, hormonal response and coagulation cascade. So in physiology, basic thing we will revise from the first year, second year knowledge so that you can understand the subject properly. What happens for the menses to occur? First of all, from the hypothalamus, gonadotropin releasing hormones are released. Gonadotropin releasing hormones, they act on pituitary, and from the pituitary, gonadotrophins are released. What are the gonadotrophins which are released from the pituitary? These are LH and FSH, luteinizing hormone and follicle stimulating hormones. There is a control of these hormones. From the ovary also, two hormones are released which are estrogens and progesterones.
Very simple. Estrogen, low level of estrogen has negative feedback on pituitary, regulating the gonadotrophin release, and progesterone also released from the ovary. High level of progesterone, they have inhibitory effect on the release of gonadotrophins, that is luteinizing hormones and follicle stimulating hormones from the pituitary. Another slide to understand the physiology of the menstrual cycle. Hypothalamus causing the release of gonadotrophin releasing hormones from the pituitary. Gonadotrophins are released. Gonadotrophins are LH and FSH. We checked on gonads, that is ovaries. From the ovaries, estrogen, progesterone, testosterone are released. Estrogen and progesterone have positive and negative feedback effect, and inhibin also release, controlling the hormones produced from the pituitary. These estrogens, progesterones released from the gonads act on the uterus to cause the menstrual blood to flow. Another important slide to understand, especially when you are having your MCQs in your tests, inshallah, after final year also, when you are will be having your part 1 examinations. This is very important slide. Lots of MCQs will come from this slide. It's very easy to understand. You have to understand and then memorize that what happens in different phases of menstrual cycle. So starting from here, from the interior pituitary, follicle stimulating hormone is released in pulsatile manner. In ovaries, what is happening that gradually estrogen, estradiol is rising. In the endometrium, just during menses, when endometrium is being shed, and after the completion of periods, endometrium is thin lined. Under the effect of different hormones, there will be the hyperplasia of the endometrium, and endometrial thickness will increase. In ovary, you can see that many antral follicles start growing under the effect of follicle stimulating hormone, which is coming from the anterior pituitary. Meanwhile, from the ovaries, estradiol is also rising. When estradiol is rising near the during the follicular phase and just near to the ovulation, estradiol is gradually increasing. So when there is a surge of estradiol, what happens that it controls the level of follicular stimulating hormone, so that the so many antral follicles which were replicating and increasing in size, they are controlled and only one follicle is getting matured. The follicle which is getting matured, it can reach up to the size of 20 millimeter, that is 2 centimeter in size, because when there is a surge of estradiol, it controls the maturation of follicles, causing only one follicle to become dominant. So when there is estradiol surge, after soon after that there is luteinizing hormone surge from the interior pituitary. What it will cause? It will cause ovulation within 24 hours of LH
search. So when ovulation occurs, the rest over the of the follicle becomes the corpus luteum. During this period, from the ovaries, progesterone start rising. Under the effect of progesterone in the uterus, the endometrial glands they become very much tortuous. Secretory phase start in the endometrium. The tortuous endometrial glands they show lots of secretory activity. So at the end of the luteal phase, when corpus albicans is left, the progesterone is withdrawn. When the progesterone is withdrawn, the effect on endometrium is that endometrium start shedding and menses start. So after the having the physiology in mind, what are the different definitions? Nowadays, very simple definitions are used, which is abnormal uterine bleeding. The different definitions I am going to discuss with all of you, they were used previously. Now a simple abnormal uterine bleeding AUB terminology is being used. But during the exams, especially during your vivas, examiners can ask you what are different definitions. What is menorrhagia? So they can ask you different definitions. So to get more marks, you should know all these definitions. So what is menorrhagia? Menorrhagia is heavy bleeding during normal intervals with excessive flow. Cycle more than 8 days, volume more than 80 ml. What is metrorrhagia? Metrorrhagia is heavy menstrual bleeding which is with irregular interval with excessive flow. What is oligomenorrhea? Oligomenorrhea is menstruation occurring more than after every 35 days up till 6 months. What is amenorrhea? We will discuss it in detail also, but having knowledge of definition. What is primary amenorrhea? Absence of menarche by the age of 16 in the presence of normal pubertal development, that is tenor stage 4 and 5, is called primary amenorrhea, or lack of menses by the age of 14 years in the absence of pubertal development is primary amenorrhea. Now what is secondary amenorrhea? Secondary amenorrhea is the absence of 3 consecutive menstrual cycle or more than 6 months of amenorrhea is secondary amenorrhea. What is hypomenorrhea? Hypomenorrhea is regular menstrual cycle with scanty flow, that is light bleeding. What is polymenorrhea? Polymenorrhea is frequent menstrual cycle but having normal bleeding. What is polymenorrhagia? Hagia जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब है कि heavy bleeding है. So polymenorrhagia is frequent cycle with heavy bleeding. Menstrual patterns क्या क्या होते हैं? Frequency क्या है? If menstrual cycle is, if menses come frequently, that is in less than 21 days. What is normal menstrual cycle is of 21 to 35 days. Minimum 21 days और maximum 35 days. और अगर 35 days से ज़्यादा का गैप आ जाए तो इसका मतलब है कि menstrual pattern is infrequent. Regularity क्या होती है?
या तो रेगुलर होते हैं, रेगुलरली एक ही डेट पे आ रहे हैं, या इरेगुलर हैं या एब्सेंट हैं। ड्यूरेशन क्या होती है नॉर्मल? 2 to 8 डेज। और प्रोलॉन्ग क्या होगा अगर 8 डेज से ज़्यादा हो जाए, और शॉर्टेंड साइकिल क्या होगा अगर लेस देन 2 डेज तक पीरियड्स रहें। नॉर्मल वॉल्यूम लॉस्ट इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? 20 to 80 मिल। अगर ये 80 मिल से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, और अगर लेस देन 15 मिल हो तो लाइट ब्लीडिंग है। नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक, पहले हमने थोड़ी सी बेसलाइन हमें आइडिया हो गया कि फिजियोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट डेफिनेशंस क्या होती हैं। अब हम जाएंगे इसकी इटियोलॉजी की तरफ। HMB की इटियोलॉजी क्या हो सकती है? फाइब्रॉइड यूट्रस हो सकते हैं, एंडोमेट्रियल सर्वाइकल पॉलिप्स हो सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस काजिंग मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज, कोई मेलिग्नेंट लीजन्स हो सकते हैं एंडोमेट्रियम के, सर्वाइकल या वेजाइनल, ओवेरियन, जेनिटल ट्रैक की कोई डिजीज हो सकती है, या प्रेगनेंसी रिलेटेड इरेगुलरिटी हो सकती है। और क्या हो सकता है? कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, थायराइड डिजीजेस, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ड्रग थेरेपीज में कोई ड्रग पेशेंट ले रहा है वॉरफरीन, ये इसकी इटियोलॉजी में आता है। मोस्ट कॉमन इटियोलॉजीज यही हैं। यू शुड learn all these etiologies by heart. Famous question in multiple choices question, SCQs and Viva also. ठीक है, बहुत अच्छा इसको आपने याद करना है। Now what is bleeding of endometrial region? ये एक पुरानी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होती है। Bleeding of endometrial region is abnormal bleeding from the genital tract without any demonstrable organic cause. कोई organic cause इसमें से जो हमने डिस्कस किए हैं कि जी जैसे फाइब्राइड हो सकता है, कोई पोलिप है, कोई IUCD है, PID है, कोई लीन है जेनिटल ट्रैक्ट में, कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई भी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी अगर नहीं मिलती लेकिन स्टिल पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ abnormal uterine bleeding, then it's called bleeding of endometrial region, BEO. इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? इसका डायग्नोसिस इज मेड बाय एक्सक्लूडिंग ऑर्गेनिक कॉज। सब कुछ आपने देख लिया, अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी करा लिए हैं, लेकिन कोई कॉज नहीं मिल रही और पेशेंट इज स्टिल कंप्लेनिंग that she is having abnormal uterine bleeding and you don't find any organic cause. So this is called bleeding of endometrial origin. Important picture टोप्स में आ सकती है। Different types of fibroids. Some mucosal fibroids. More than 50% of the volume is near the endometrium or projecting inside the uterine cavity. Pedunculated intrauterine fibroid or submucosal fibroid. Then intramural fibroids. More than 50% of the volume is in the muscular layer. Then subserosal fibroid. More than 50% volume is outside the uterine cavity, outside the uterus. Sessile भी हो सकते हैं और pedunculated fibroids भी हो सकते हैं। Basic uterus, cut section, fallopian tubes, ovaries, endometrial cavity,
This is the endometrial cancer, cervix, vagina. So, discussing the bleeding of endometrial origin. Older terminology for it was DUB, that is dysfunctional uterine bleeding. पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया कि abnormal bleeding from the genital tract without any demonstrable organic cause is called BEO. Diagnosis is made by excluding organic cause. इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि altered hypothalamo-pituitary ovarian axis, alter endometrial response to sex hormones, alter proportion of estrogen and progesterone production and their effect on endometrium phasing, causing bleeding of endometrial region. So क्या है कि वही जो मेंसेस को चीजें कंट्रोल कर रही हैं वही उनमें कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन हो गई है, कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई है, जैसे हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस खराब हो गया है, एंडोमेट्रियल रिस्पांस खराब हो गया है टू ऑल दीज सेक्स स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन्स, या ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन जो ओवरीज से हो रही है वो ऑल्टर्ड हो गई है, जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है लेकिन ये सारी ऑल्ट्रेशन हो गई है विच इज कॉजिंग ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन या डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग. Majority of cases of HMB में क्या होता है? It is probable that the precise cause of heavy bleeding lies at the level of endometrium itself. This has previously been termed dysfunction uterine bleeding and is the diagnosis of exclusion. Containment of menstrual blood loss is controlled in major part by vasoconstriction. In the absence of pregnancy with luteal regression, the withdrawal of sex steroids, that is estrogens plus progesterone, results in vasoconstriction of spiral arterioles. Factors regulating vascular tone thus play an important role and include prostaglandin, endothelins, and nitric oxide. For example, reduced endometrial expression of vasoconstrictor endothelin has been described in women with HMB. Disturbance in prostaglandin synthesis pathway is also implicated in the problem of HMB. Early research in this area demonstrated increased level of total prostaglandins in the endometrium of women with HMB. So, ये जो पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ी इसमें फिर इम्पोर्टेंस ये क्या कि जो हम आगे मेडिसिन भी देते हैं, जैसे administration of COX inhibitors is our first line treatment during the menses for the women with HMB. Endometrial hemostasis differs from hemostasis elsewhere in the body. Platelets in the endometrial cavity are deactivated. The endometrium is rich source of plasminogen activators, but coagulation is rapidly reversed by marked fibrinolysis. Since menstrual loss is mainly controlled by vasoconstriction, there is lesser need for coagulation. जो menstrual blood होता है, it doesn't clot. क्यों नहीं clot होता? Because of presence of fibrinolysins. When there is excessive bleeding, so it's fibrinolysis की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, तो उसके बाद HMB में क्लॉटिंग भी शुरू हो जाती है. हिस्ट्री में जब आप पूछते हो पेशेंट से तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर आपने पूछना होता है. Women with HMB are reported to exhibit increased endometrial fibrinolytic activity. Antifibrinolytics commonly prescribed for the complaint of HMB, they reduce the blood loss by 40 to 50%. It accounts for 80% of DUB at the pubertal and perimenopausal age. Patient has variable period of amenorrhea followed by prolonged heavy painless bleeding. Prolonged अनअपोज ईस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाती है. जब एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होती है तो सिंपल हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाता है. सिंपल हाइपरप्लेजिया कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया में जा सकता है. कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया में अगर एटीपिया शुरू हो जाए तो मोस्ट लाइकली इन फ्यू इयर्स टाइम पीरियड एडिनोकार्सिनोमा डेवलप होना शुरू हो जाता है. अब ये इम्पोर्टेंट इंसिडेंसेस हैं कि व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी इन
different hyperplasias. जब simple cystic hyperplasia होता है तो 1% chance होता है कि it can convert into malignancy. And if patient is having complex hyperplasia with atypia, जैसे किसी की diagnostic curettage किया है, endometrial biopsy ली है और उस पे आ जाता है कि जी patient is having complex hyperplasia with atypia, तो इसमें कितना चांस है, कितना इंसिडेंस है malignancy का? 29%. Further increase in perimenopausal women who are obese, diabetic, on estrogen therapy, hypertensive है, infertile है, family history है CA endometrium की या polycystic ovarian disease की कोई history है, तो ये incidence further increase हो जाता है. और जो हाइपरप्लेजिया की चेंजेस हैं जैसे सिंपल है, इवन इन कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया बट नॉट द कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, उसमें हम चेंजेस को रिवर्स भी कर सकते हैं विद साइक्लिकल प्रोजेस्टेरॉन्स. जी कुछ समझ आ रहा है आपको? प्लीज मुझे बताते भी जाएं, ठीक है जी. नॉर्मल एंडोमेट्रियम, सिंपल कलमनर एपिथेलियम लाइनिंग द एंडोमेट्रियल कैविटी, और हाइपरप्लेजिया में क्या हुआ? हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो गया, इस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो गया एंडोमेट्रियम का. जी बच्चों कुछ बताते भी जाओ, कुछ समझ आ रहा है? इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, सबको किसी ना किसी टाइम पीरियड पे फैमिली में पेशेंट्स के साथ इन क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है, स्पेशली जब आप हाउस जॉब करेंगे तो हर कोई आपसे एचएमबी पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा. पेशेंट फैमिली में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजी है, मुझे बताते जाओ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है. ठीक है बच्चों, चलें आगे चलते हैं. जितनी heavy menstrual bleeding, excessive menstrual blood loss which interfere with women's physical, emotional and social quality of life, can occur alone or in combination. Intervention should aim to improve the quality of life. HMB के लिए जो पुरानी टर्मिनोलॉजी थी वो मेनोरेजिया था, कि नॉर्मल इंटरवल्स हैं लेकिन एक्सेसिव फ्लो हो रहा है, कि साइकिल उसका फॉर एग्जांपल 7/28 डेज का है, लेकिन पहले वो 1 to 2 पैड सोक कर रही थी, अब हो सकता है 3 to 4 या इससे भी ज्यादा पैड सोक कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड मेनोरेजिया. के साइक्लिकल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, साइकिल उसका नॉर्मल है लेकिन ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, या नंबर ऑफ डेज उसके थोड़े ज्यादा हो गए हैं और ब्लड लॉस मोर देन 80 मिल हो गया है. जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्ट्री में SCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए, कि हिस्ट्री में आपने क्या क्या पूछना है. एज ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप हिस्ट्री लेना शुरू करते हो तो HMB की हिस्ट्री में एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन उससे क्या करना है कि व्हेन यू हैड फर्स्ट पीरियड्स व्हाट इज द एज एट द menarche, शी इज मैरिड और अनमैरिड. इफ शी इज मैरिड तो व्हाट इज हर पैरिटी, कितने बच्चे हैं उसके, कितने अबॉर्शंस हैं. गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, कि जी पहले उसका साइकिल कैसा था, रेगुलर था, क्या फ्रीक्वेंसी थी, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग क्या थी, वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस क्या था, क्लॉट्स आते थे कि नहीं आते थे, नाइट टाइम में जरूरत तो नहीं पड़ती थी पैड चेंज करने की, और अपने काम से कोई घंटे उसको कोई टाइम ऑफ तो नहीं करना पड़ता था कि उसको इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती थी, कोई उसको
पेन ड्यूरिंग पीरियड्स दैट इज डिस्मेनोरिया, वो तो नहीं होता था, अगर होता था तो व्हाट वाज इट्स नेचर, स्पाज्मोडिक था, कंजेस्टिव था? इफ शी इज मैरिड, does she has any history of dyspareunia, that is pain during sex? Do she has any postcoital bleeding? Is there any associated vaginal discharge? और अगर vaginal discharge उसको है तो आपने फिर उसके सारे characteristics पूछने हैं। कलर क्या है उसका, स्मेली है, इची है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पेशेंट की डिटेल में लेनी है। ग्रेविडा पैरा एबॉर्शंस क्या उसके हैं, रीसेंट उसका कोई एबॉर्शन तो नहीं हुआ, उसकी रीसेंट डिलीवरी तो नहीं हुई, टॉपिक प्रेगनेंसी की कोई हिस्ट्री तो नहीं है रिसेंटली उसमें, कोई उसने इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस तो नहीं इंसर्ट कराया हुआ। कॉन्ट्रासेप्शन की जरूर हिस्ट्री लेनी है कि कॉन्ट्रासेप्शन में वो क्या यूज कर रही है, आईयूसीडीज कोई यूज कर रही है या उसने कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, कोई इंजेक्टेबल ले रही है, कोई हार्मोन थेरेपी ले रही है क्या या कोई वेरिएंट मेथड यूज कर रही है, क्या उसका कॉन्ट्रासेप्शन वो क्या यूज कर रही है। कोई उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर के कोई सिम्टम्स तो नहीं है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? साथ साथ कोई मुझे चैट पे बताता जाएगा कि जी जी सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर ये हो सकते हैं कि पेशेंट को ब्रूजिंग हो, अगर कहीं उसको कोई कट लगता है तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, कोई उसकी जॉन्डिस की हिस्ट्री है। सिम्टम्स ऑफ थायराइड डिजीज क्या हो सकता है? हाइपो और हाइपर दोनों के आपने सिम्टम्स पूछने हैं। दोनों हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म कैन कॉज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। आपने हाइपो और हाइपर के लिए क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं? उसका कोई वेट गेन वेट लॉस तो नहीं है, कोई उसको ट्रेमर्स तो नहीं होते उसको, और क्या साथ साथ मुझे कोई बताता जाएगा? कोई कॉन्स्टिपेशन कोई डायरिया तो नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा वो परेशान तो नहीं रहती, उसको पेल्पिटेशंस तो नहीं होती रहती? सिम्टम्स ऑफ थायराइड डिजीज हाइपो और हाइपर दोनों के आपने सिम्टम्स पूछने हैं। कोई स्वेलिंग तो नहीं है, हिस्ट्री में आपने ये पूछना है और एग्जामिनेशन में भी आपने जरूर इसको एग्जामिन करना है थायराइड को। अगर पेशेंट आपको सही हिस्ट्री नहीं दे पा रही कि जी उसको पहले कैसा ब्लड लॉस था अब कैसा था, तो हम उसको कहते हैं कि पिक्टोरियल चार्ट्स बना ले। वो क्या यूज कर रही है, नैपकिन यूज कर रही है कि टेम्पन्स यूज कर रही है, पार्शली सोक्ड होते हैं, मॉडरेटली या फुली सोक्ड हो जाते हैं, और डेली जो ड्यूरिंग दी मेंसेस डे पीरियड्स वाले डेज में वो कितने टेम्पन्स किस क्वांटिटी के, माइल्ड मॉडरेट या फुली सोक्ड कितने पैड्स वो करती है डेली, ये वो डायरी बना के लाती है ताकि हमें आइडिया हो कि जी पहले उसका कैसा था और अब वो कितना ब्लड लूज कर रही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एससीक्यूज में पूछा जाता है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइवा आपसे कराया जाता है। एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में आपने पेशेंट का बीएमआई जरूर कैलकुलेट करना है। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं हर किसी को जरूर पता होगा, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। आपने पेशेंट को देखना है कि वो स्लिम थिन लीन पेशेंट है कि वो बहुत ज्यादा ओबीज पेशेंट है, क्योंकि दोनों जो हैं वो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज कर सकती हैं। पेशेंट का थायराइड जरूर एग्जामिन करना है, देखें कोई साइंस
ऑफ एनीमिया तो नहीं है, पेशेंट पेल तो नहीं है, कोई पीसीओडी के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के कोई साइंस तो नहीं है। वो क्या साइंस हो सकते हैं कि पेशेंट ओबीस है, पेशेंट को हिर्सुटिज्म है, एक एंथ्रोसिस नाइग्रिकेंस, ब्लैकनिंग जो हो जाती है आर्मपिट्स नेक के पास, ब्लैकनिंग बहुत ज्यादा है अंडर थाइज एरियाज में, अगर कोई उसको एक्नी है तो ये क्या है, साइंस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें स्पेशली ये तो बहुत अच्छे तरीके से देखनी है और मेंशन करनी है एग्जामिनर को। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपने एब्डोमिन को सुपरफिशली पेल्पेट करना है, फिर डी पेल्पेशन करनी है। डी पेल्पेशन में आपने क्या देखना है कि कोई मैस तो नहीं है, कोई यूट्राइन, कोई ओवेरियन मैस तो नहीं पेल्पेट हो रहा। हिस्ट्री में भी पेशेंट बाज औकात बता देती होती है कि there is feeling of mass in abdomen which is gradually increasing in size या abruptly increase हो गया साइज में। और अगर पेशेंट हिस्ट्री कोई नहीं भी देती तो फिर भी आपने पैल्पेट करके देखना है कि कोई मैस तो नहीं फील हो रहा। बाज औकात मैसेज मिल जाते हैं और बाज औकात इवन फाइब्राइड और ओवेरियन सिस्ट के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करती हैं, जैसे फुल टर्म प्रेगनेंसी हो, इतने बड़े बड़े मैसेज पैल्पेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एचएमबी की एग्जामिनेशन के लिए आपने वजाइनल एग्जामिनेशन जरूर करना है। आपने स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है। स्पेकुलम में आप क्या देखते हो, वल्वा वजाइना नॉर्मल लुकिंग है, सर्विक्स नॉर्मल लुकिंग है, कोई सर्वाइकल पोलिप, कोई ग्रोथ वजाइना में या सर्विक्स से तो नहीं कोई प्रोट्यूट कर रही, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। अगर ब्लीडिंग है पेशेंट को तो वो कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, कि बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग है। फिर आपने बायमैनुअल एग्जामिनेशन करना है, एग्जामिनेशन डन विद बोथ हैंड्स। उसमें आप क्या देखते हो, एक हाथ आप एब्डोमेन में ऊपर रखते हो और दूसरा हाथ वजाइना में इंट्रोड्यूस करके आप देखते हो कि यूट्रस का साइज क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी सरफेस कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यूट्रस स्टैंडर्ड तो नहीं है, मोबाइल है कि फिक्स्ड है, और फोनेसिस में जो एडिनेक्सा में कोई मैस तो नहीं फील हो रहा। अगर मैस फील हो रहा है तो उसका साइज क्या है, सरफेस क्या है, उसका साइज क्या आपको फील हो रहा है क्लिनिकली, वो सेपरेबल है यूट्रस के साथ कि अलग से आपको फील हो रहा है। बाजुकात यूट्राइन मैसेज इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो एडिनेक्सा में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो यूट्राइन मैसेज जैसे फाइब्राइड है तो वो हार्ड होंगे, जबकि एडिनेक्सल मैसेज अगर एडिनेक्सा में कोई मैस फील हो रहा है तो वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो ओवेरियन सिस्ट सॉफ्ट भी हो सकती हैं, उनमें कोई मैस सॉलिड मैसेज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एज। और अगर आपको कोई मैसेज मिल रहे हैं तो आपने उनकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक देख के साथ में देखना है कि कोई टेंडरनेस वगैरह तो नहीं पेशेंट फील कर रही। जब हम एग्जामिन कर रहे हैं तो पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा। जी, इन्वेस्टिगेशंस भी एससीक्यूज का बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एससीक्यूज में, और वाइवा में भी पूछा जाता है। आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करानी है, इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें क्या क्या आपने देखना है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज देखनी है, टीएलसी डीएलसी, प्लेटलेट्स काउंट्स कितने हैं, ईएसआर कितना है, ताकि देखें कि पेशेंट का एनीमिया किस लेवल का है। जो आपने क्लिनिकली देखा है कि पेशेंट अगर पेल है तो जब आपने लैब्स कराई हैं आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स और लैब्स को रिलेट कर रही हैं, अच्छे डॉक्टर की फाइंडिंग्स को कोरिलेट करना चाहिए। पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कराते हैं, पेशेंट का कोगुलेशन प्रोफाइल हम करा सकते हैं, उसका पीटी एपीटीटी, अगर आपको हिस्ट्री में कोई शक हो रहा है कि कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है तो पीटी एपीटीटी कराएं। अगर हिस्ट्री सजेस्टिव है कोई किसी थायराइड डिसऑर्डर्स की विच कैन बी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, तो आपने थायराइड प्रोफाइल भी कराना है। थायराइड प्रोफाइल में आप क्या क्या कराते हैं, थायराइड प्रोफाइल में आप T3 T4 एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कराते हैं। इसके अलावा और क्या आप करा सकते हैं, जी इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे विच कैन बी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड,
और एब्डोमिनो पेल्विक करा सकते हैं अगर कोई बड़े मैसेज हैं, या आप टीवीएस भी करा सकते हैं। आपने इसमें क्या देखना है, कोई जेनिटल ट्रैक्ट लीन तो नहीं है, कंटेनिंग लाइक फाइब्रॉइड्स, कोई उस पेशेंट का यूट्रस का साइज आप देखेंगे, कोई उसमें मैस है उसके साइज चेक करेंगे कि किस किस साइजेस के वो मैसेज हैं यूट्रस में। ये एडिनेक्सा में एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या है, एंडोमेट्रियल थिकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एडिनेक्सा में कोई मैस तो नहीं फील हो रहा, कोई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट तो नहीं है। ओवेरियन वॉल्यूम हम जरूर देखते हैं, उसमें देखते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को रूल आउट करने के लिए कोई पेरिफेरली अरेंज फॉलिकल्स तो नहीं है, कोई पॉलिप्स, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को इंसर्ट की हुई है यूट्रस में, और प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशंस कोई तो नहीं है, आरपीओसीज, प्रेगनेंसी, टॉपिक प्रेगनेंसी, या कोई एडिनेक्सल मैसेज तो नहीं है। और आप क्या करा सकते हो, सोनो हिस्टोग्राफी। सोनो हिस्टोग्राफी में क्या करते हैं, ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड एक फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है विच कैन बी सीन ऑन अल्ट्रासाउंड। उससे आप क्या देखते हो, कोई इंट्राकेविटरी लीजन जैसे कोई पॉलिप, कोई फाइब्राइड पॉलिप तो नहीं है, वो सोनो हिस्टोग्राफी पे नजर आ जाते हैं। और अगर पेशेंट हिस्ट्री देती है कोई विजाइनल डिस्चार्ज की, तो फिर आप हाई विजाइनल स्वैब लेते हो फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, या अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आप सस्पेक्ट कर रहे हो एचएमबी के कॉज में, एब्डोमिनल यूट्राइन ब्लीडिंग के कॉज में, तो आप एंडोसर्वाइकल स्वैब भी ले सकते हो। और इन्वेस्टिगेशंस क्या है, आप अगर पेशेंट इज मोर देन 45 years old तो एंडोमेट्रियल सैंपलिंग इज मस्ट। अगर इफ पेशेंट इज गिविंग हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर या इरेगुलर पीरियड्स, इरेगुलर मेंसेस, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कोई हिस्ट्री दे रही है, या आपने पहले पेशेंट को ड्रग्स ट्राई कर ली हैं लेकिन पेशेंट ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही बिल्कुल भी, तो एंडोमेट्रियल सैंपलिंग आपने जरूर करनी है इन पेशेंट with abnormal uterine bleeding with age more than 45 years especially। एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग के क्या क्या तरीके हैं जी जनाब, ये भी वाइवा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, डीयूबी, ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल रीजन के क्वेश्चंस में, क्योंकि एग्जाम में वाइवा के टाइम पे हमारे पास फ्रीक्वेंटली एचएमबी के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों को ज्यादा जब ये केसेस आते हैं तो उसके मुतालिक आपको क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए कि क्या क्या एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। एंडोमेट्रियल सैंपलिंग के क्या क्या तरीके हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज कर सकते हैं आप, उसमें एंडोमेट्रियम को आप सैंपल करते हो, देखते हो कि एंडोमेट्रियम की टाइप कौन सी है, सिक्रेटरी फेज में है, प्रोलिफरेटिव फेज में है, कोई इन्फ्लेमेटरी लीजन तो नहीं वहाँ पे देखा गया, कोई ट्यूबरकुलोसिस या प्री कैंसरस या कैंसर लीजन तो नहीं आपको कोई मिला। डीएनसी के लिए ये इंस्ट्रूमेंट आपके टोप्स में आते हैं। दिस वन इज शर्मन क्यूरेट, ठीक है, बहुत छोटे साइज का क्यूरेट है, और ये क्यूरेट जरूर याद रखना है, दीज आर दी क्यूरेट्स फॉर एंडोमेट्रियल सैंपलिंग। जी ये भी आपके टोप्स का एक स्टेप हो सकता है, पाइपल सैम्पलर। दिस इज दी पाइपल सैम्पलर। पाइपल सैम्पलर जो है ये आउट पेशेंट प्रोसीजर है, ओपीडी बेसिस पे आप इसको कर सकते हो विदाउट एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया। आप पेरिस पेशेंट में इजीली इंट्रोड्यूस करते हो फ्रॉम द सर्विक्स इनटू द यूट्रस इन द एंडोमेट्रियल कैविटी, और आप प्लंजर को पीछे पुल करते हो, अंदर एक सक्शन क्रिएट होती है जिसके से लूजली एडहेरेंट एंडोमेट्रियल सेल्स सक होके इस सक्शन ट्यूब में यानी पाइपल सैम्पलर में आ जाते हैं। जो सैंपल आता है उसको आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हो, यानी विदाउट एनेस्थीसिया एक ओपीडी बेसिस पे आउट पेशेंट प्रोसीजर आप कर सकते हो। लेकिन इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, फेल्ड अटेम्प्ट हो सकती है, सैंपल जो है ये कम सैंपल इससे जाहिर है एक छोटी सी ट्यूब है जिसमें एक स्पेसिफिक सक्शन क्रिएट हो रही है जो कि लो होती है, तो बाज़ औक़ात आपको इनसफिशिएंट सैंपल मिलता है, 5% सिर्फ आप
कैविटी को सैंपल कर सकते हो। अगर एंडोमेट्रियल कोई पॉलिप है, सब म्यूकोजल कोई फाइब्राइड है या कोई सर्वाइकल पॉलिप फाइब्राइड है, हो सकता है कि आप इसको इंट्रोड्यूस ही ना कर पाओ, आप सर्विक्स से आगे ही ना जा पाओ, और बाज़ पेशेंट जो है दे poorly tolerate speculum examination. So these are the drawbacks of pipal sampler. अच्छा जी, आइडियल मेथड क्या है फॉर एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग? एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। आइडियल मेथड जो है वो है स्टेरोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग। ये भी आपके टॉक्स के सेशन में रखा जाता है। इसका फायदा क्या है कि आप एक तो डायग्नोज कर लेते हो, दूसरा थेराप्यूटिक भी होता है। आप साथ में ही आपने कोई सबकस फाइब्राइड है, कोई पोलिप है, उसको रिसेक्ट कर सकते हो, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग आप कर सकते हो। बाहर की दुनिया में तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ये इतने उनके फ्लेक्सिबल, इतने थिन स्टेरोस्कोप्स होते हैं कि वो ओपीडी में विदाउट एनेस्थीसिया आराम से स्टेरोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग ओपीडी में ही वो कर लेते हैं। जी, another picture showing स्टेरोस्कोप टेकिंग एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टेरोस्कोप से आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, पीछे वीडियो कैमरा अटैच है स्टेरोस्कोप के साथ, सर्विस के थ्रू यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया, कैविटी को फ्लूइड से डिस्टेंड करते हैं, अंदर से सारी एंडोमेट्रियम आपको नजर आती है, साथ में ही आपको ये एक पैथोलॉजी जो पड़ी हुई है वो नजर आ जाती है, और विद दिस स्टेरोस्कोप आप इसको रिसेक्ट भी कर सकते हो। सो एंडोमेट्रियल बायोप्सी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेरोस्कोप्स की टाइप्स क्या है? मिनिएचर स्टेरोस्कोप है जो बहुत थिन होते हैं, 2.7 मिलीमीटर विद 3 to 3.5 मिलीमीटर शीट। एक इसकी एक्सटर्नल शीट होती है और अंदर इसके स्टेरोस्कोप होता है, यानी बाहर वाली जो शीट है वो 3 to 3.5 मिलीमीटर की है, उसके अंदर 2.7 मिलीमीटर का स्टेरोस्कोप है। ये आउट पेशेंट बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हो। जी, मुझे साथ साथ प्लीज बता दें, थैंक यू। एक बच्चे ने मुझे बताया कि कुछ ना कुछ समझ आ रही है आपको, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी, जो हम ओपीडी बेसिस पे स्टेरोस्कोप यूज करते हैं, they significantly reduce the discomfort experienced by the woman. 1.9 मिलीमीटर माइक्रो स्टेरोस्कोप्स भी होते हैं, they should be reserved for special cases, जैसे कोई सर्वाइकल स्टेनोसिस का केस है, उन पेशेंट्स में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ये एक पिक्चर ली हुई है स्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर करते हुए, मॉनिटर से ली गई है वीडियो कैमरा के थ्रू, कि इंटरनल जो नजर आता है वो इस तरह की पिक्चर नजर आती है कि एंडोमेट्रियम नजर आ रहा है, यूट्रस का इंटीरियर पार्ट, टॉप ऑफ द यूट्रस नजर आ रहा है, ये बीच में फाइब्रॉइड्स नजर आ रहे हैं। स्टेरोस्कोप के थ्रू ये फ्लूइड से कैविटी को डिस्टेंड किया गया है और अंदर ये फाइब्रॉइड्स नजर आ रहे हैं। जी, ये भी इम्पोर्टेंट स्लाइड है फॉर दी SEQs especially. What can be the differential diagnosis of DUB, dysfunctional uterine bleeding, adolescent DUB जो है उसकी क्या DDs हो सकती हैं? So DDs क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसमें पेशेंट से आप हिस्ट्री लेते हो तो पेशेंट हिस्ट्री में आपको बताता है कि जी उसको बहुत ज्यादा ब्रूजिंग हो जाती है, कोई कट वगैरह लगता है तो ब्लड रुकता नहीं है, कोई जॉन्डिस की हिस्ट्री पेशेंट दे रहा होगा। इन्वेस्टिगेशन जब आप कराओगे तो क्लॉटिंग प्रोफाइल आप कराते हो, इम्पोर्टेंट उसमें प्लेटलेट्स काउंट्स हैं, पेशेंट का पीटी एपीटी आप कराते हो, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम आप कराते हो। अगर कोई जो पेशेंट एबीयूबी की या डीयूबी की जो अगर हिस्ट्री दे रही है तो
आपने थायराइड की हिस्ट्री जरूर लेनी है। थायराइड डिसफंक्शन विच कैन बी हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म, दोनों में आप मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज देखते हो, तो आप हिस्ट्री में पेशेंट से हाइपो एंड हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स पूछते हो, और जब आप एग्जामिन करते हो तो आप देखते हो कि थायराइड इलाज तो नहीं है, कोई साइंस, कोई बहुत ज्यादा अगर इलाज हो गया है पेशेंट का गाइटर, तो आप सारे उसको एग्जामिनेशन में देखते हो, उसका साइज क्या है, उसकी लोअर लिमिट रीचेबल है कि नहीं है, कोई ऑस्कल्टेट उसको करके देखते हो, कोई बुरुई तो नहीं आ रही उसमें, पेशेंट में हिस्ट्री में जरूर पूछो उससे कि वो किसी इंडेमिक एरिया, गाइटर इंडेमिक एरिया में तो नहीं रहता। ठीक है, उसके सारे साइंस एंड सिम्टम्स आप देखोगे, और आप T3 T4 और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये प्रोफाइल कराते हो। आपका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी होता है। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवेरियन एनलार्जमेंट कैन बी डिटेक्टेड। पेशेंट में आप हिस्ट्री जब लेते हो और एग्जामिन जब करते हो तो एक्ने मिलती है, पेशेंट बीज होती है, हिस्टोटिज्म होता है, एक एंथोसिस मिल सकता है। आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है, आप अल्ट्रासाउंड पे जो ओवरीज है उसका साइज सर्च करते हो, उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें फॉलिकल्स कैसे नजर आ रहे हैं, कोई पेरिफेरी अरेंज फॉलिकल्स तो नहीं है। आप LH FSH कराते हो, उनकी रेशियो देखते हो, सीरम प्रोलैक्टिन आप करा सकते हो, सीरम ईस्ट्राडायोल लेवल्स कराते हो, और दे शुड बी प्रेफरेबली डन ऑन डे 2 ऑफ मेंसेस। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या हो सकता है डिस्फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग का? कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इवेंट हो सकता है, जैसे कोई एबॉर्शन हुआ है, कोई मोलर प्रेगनेंसी थी, पेशेंट को पोस्ट अबॉर्टल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई क्रॉनिक टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं पेशेंट ने कैरी की हुई, या डिलीवरी के बाद कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या पेशेंट ने कोई इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लिखवाई हुई है विच इज कॉजिंग दी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो उसमें आप जब हिस्ट्री लेते हो तो आपको पेशेंट एमेनोरिया की हिस्ट्री देती है, रिसेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री देती है, कोई मिस्ड पीरियड्स, कोई डिलीवरी तो नहीं अभी रिसेंटली पेशेंट ने कराई, कोई IUCD तो नहीं इंसर्ट कराया, कोई उसने अबॉर्शन के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो नहीं कराई। तो इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कराते हो, UPT करा लेते हो, बाजू का बीटा HCG भी कराना पड़ता है, और अल्ट्रासाउंड इज मस्ट। फिर कोई ऑर्गेनिक कॉज तो नहीं है, कोई फाइब्राइड यूट्रस तो नहीं है, फाइब्राइड यूट्रस जो है वो मेनोरेजिया, हैवी साइक्लिकल ब्लीडिंग, पोलीमेनोरेजिया करा सकता है, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया कराता है, और यूट्रस जो होता है वो इरेगुलरली इनलार्ज होता है लेकिन टेंडर नहीं होता, नॉन टेंडर यूट्रस होता है। और आप इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करा सकते हो, यू हैव टू गो फॉर अल्ट्रासाउंड। अब कोई एडिनेक्सर पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट तो नहीं है, या कोई एडिनोमायोमा तो नहीं है, एडिनोमायोसिस तो नहीं है। इसमें भी पेशेंट बाज़ मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया की हिस्ट्री देते हैं, डिस्मेनोरिया की हिस्ट्री देते हैं, पोस्टकॉइटल पेन की हिस्ट्री देते हैं, पेशेंट इनफर्टाइल हो सकती है, और यूट्रस थोड़ा सा इनलार्ज होता है, मे बी टेंडर ऑन एग्जामिनेशन, रिट्रोफिक्स्ड, रिट्रोवर्टेड रिट्रोफिक्स्ड यूट्रस मिलता है आपको एग्जामिनेशन पे, और एडिनेक्सल मैसेज मिलते हैं, और यू हैव टू गो फॉर अल्ट्रासाउंड टू डायग्नोज दीज कंडीशंस। फिर एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट जो आपको, ये सारे जो डिफरेंशियल हैं ये आप याद करते हो क्योंकि आपने हिस्ट्री में इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। सो इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसमें एक क्रॉनिक PID भी है। क्रॉनिक PID वाले पेशेंट्स भी पोलीमेनोरेजिया के साथ डिस्मेनोरिया, लिकोरिया, क्रॉनिक पेन लोअर एब्डोमेन में या सैक्रल रीजन में उसके साथ प्रेजेंट करते हैं। एग्जामिनेशन पे यूट्रस जो है वो टेंडर होता है, फिक्स्ड होता है, और उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, एंड यू हैव टू गो फॉर अल्ट्रासाउंड टू डायग्नोज ऑल दीज कंडीशंस। कोई एंडोमेट्रियल कैंसर, जेनिटल ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है जो कि DUB या एब्डोमिनल यूट्राइन ब्लीडिंग कर रहा है। एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए पेशेंट हिस्ट्री में अक्सर बताती है कि शी इज नली पैरा, ओबीज होती है, हाइपरटेंसिव होती है, अर्ली मेनार्की, डिलेड
उसका मीनोपॉज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके ज़्यादा होते हैं। पेशेंट डायबिटीज़ की हिस्ट्री, डायबिटिक हाइपरटेंसिव होती है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है उसकी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकती है, और वो इरेगुलर और या फ्रीक्वेंट साइकिल्स की हिस्ट्री देती है। इन पेशेंट में आइडियली आप इसको कैसे, अगर आपको सीए का सस्पिशन है तो यू गो फॉर फ्रैक्शनल क्यूरिटांज। फ्रैक्शनल क्यूरिटांज क्या होता है? इसमें आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी एक अलग कंटेनर में भेजते हो और सर्वाइकल बायोप्सी अलग कंटेनर में, एंडोमेट्रियल बायोप्सी और जो सर्विक्स के अंदर से जो आप बायोप्सी लेते हो वो अलग अलग कंटेनर्स में भेजते हो, और इसको आप हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए भेजते हो। ठीक है बच्चों, आज हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस तक करते हैं, उससे आगे इंशाल्लाह मैनेजमेंट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई आपने क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछो। इसको 10 टीचर्स में बहुत अच्छा दिया है, प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है। आप इसको अच्छा सा पढ़ो, इसके एमसीक्यूज आना ही आना है, एमसीक्यूज और वाइवा में फेवरेट क्वेश्चंस जो हैं वो एचएमबी, डीयूबी, बीईओ के ही पूछे जाते हैं। होप सो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई है। खुद भी पढ़ो, और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, लेक्चर से पहले ही आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह यू विल परफॉर्म बेस्ट इन द एग्जाम। ढेर सारी दुआएं हैं आप सबके लिए, अल्लाह सबके घरों में खैर खैरियत रखे, जो पैंडेमिक है इससे बचाए। रमजान का महीना है, ढेर ढेर दुआएं करो, बहुत अच्छा पढ़ो, इंशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर बनना है आपने, हमारे लिए सदका जारिया बनना है। किसी किस्म की भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दुआ में याद रखना प्लीज। होप सो इंशाल्लाह आपको ये पैंडेमिक ओवर हो, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबको हम जल्दी मिलें, आपके क्लिनिकल्स करवाएं, पेशेंट्स पे आपको सिखाएं, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, सब कुछ। बस अल्लाह मियाँ हर तरफ खैर खैरियत रखे, आप सबका, हम सबका हामी और नासिर हो इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज चैट बॉक्स में आके पूछ लो, कोई समझ नहीं आई वो भी मुझे बता दो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अगर अभी टाइम हमें नहीं मिलता तो नेक्स्ट में मैं वो कवर करा दूं। आपका इस टॉपिक पे बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज।